हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज के वन शॉट वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है इकोसिस्टम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जेकेएसएसबी के एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे इकोसिस्टम क्या होता है। Ecosystem is the functional unit of nature where living organisms interact among themselves and with their physical environment. Okay, living जो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है। नाउ दिस टर्म इकोसिस्टम जो है इट वाज कॉइंड बाय A.G. टेंसले इन 1935। ठीक है। नाउ दिस इकोसिस्टम इट इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक कैटेगरीज। वन इज terrestrial ecosystem and the other one is aquatic ecosystem। ठीक है। terrestrial ecosystem is the ecosystem on land, ठीक है, like forests, grasslands, mountains, deserts, etc. and aquatic ecosystem is the ecosystem which belongs to water bodies। ठीक है। अब इस aquatic ecosystem को भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। वन इज marine ecosystem and the other one is freshwater ecosystem। ठीक है। marine ecosystem means oceans, right? And the freshwater ecosystem is further divided into two categories. One is lentic and the other one is lotic। Now lentic means जहाँ पर water stagnant होता है, रुका होता है, like lakes, ponds, etc. And lotic means जहाँ पर running water होता है, like rivers, streams, etc. ठीक है। Now the crop fields and aquarium, ये जो दो है, these are the examples of man-made ecosystems। Okay। Now the energy flow in an ecosystem। As we know sunlight is the main source of energy। ठीक है। And less than 50% of it is photosynthetically active radiation, the amount of radiation which is used in the photosynthesis। ठीक है। Now नीचे जो हमने बनाया है it is the energy flow, how energy flows from producers through primary consumers to secondary and finally to tertiary consumers or the apex consumers। This is also the food chain। Food chain is same, who eats what, like the producers, they produce the food by the process of photosynthesis, then they belong to first trophic level। Okay। And the examples are plants because they are autotrophs, and these plants, the producers, they are consumed by the primary consumers which stand at the second trophic level, and the examples are herbivores animals like cows, deer, etc। ठीक है। And these primary consumers are further consumed by secondary consumers which stand at third trophic level, and the examples there are carnivorous animals, flesh eating animals like tiger। Okay। And the secondary consumers are further consumed by the tertiary consumers which stand at the top level, highest trophic level. There we can give the example of tiger, and these carnivorous animals we can give some other example of the flesh eating animals। ठीक है। Now the something जो मैंने यहाँ पर लिखा है 10% energy, what does it mean? It means that from producers to primary consumers only 10% of the energy is transferred from producers to primary consumers। The rest of the energy, that is 90% of the energy, is lost in the form of heat। Similarly, from primary consumers to secondary consumers only 10% energy is transferred from primary to secondary। Similarly, only 10% of the remaining energy is transferred from secondary consumers to tertiary consumers। ठीक है। This is called as the 10% law। This 10% law was given by Lindemann, right? Now certain mass of living matter that at trophic level has at a particular point of time is called as the standing crop। क्या मतलब है इसका? एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे जितना भी लिविंग मैटर होता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। लाइक प्रोड्यूसर एट विच दैट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, टोटल प्लांट्स जो हम जिस इकोसिस्टम की हम बात करते हैं उसमें प्लांट्स का जो टोटल लिविंग मैटर है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। इसी तरह हम बाकी ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। ठीक है। नाउ दिस 10% energy law it was given by Lindemann in 1942 as I already told। now उसके बाद आते हैं ecological pyramids। ठीक है। now what is this ecological pyramid? It is a graphical representation of the relationship between organisms at various trophic levels in a food chain।
ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, उसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इकोलॉजिकल पायरामिड. नाउ बेस पे कौन रहेंगे? प्रोड्यूसर्स, बिकॉज दे आर एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. अगर हम यहाँ पर बनाएंगे, सी दिस इज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ प्रोड्यूसर्स. उसके बाद कौन आएंगे इसके ऊपर? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर प्राइमरी कंज्यूमर्स, इसके ऊपर आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एंड फाइनली आएंगे टर्शियरी कंज्यूमर्स. समथिंग लाइक दिस, इट्स व्हाट वी कॉल इकोलॉजिकल पायरामिड. ठीक है. नाउ दिस इकोलॉजिकल पायरामिड्स जो है, हम 3 टाइप्स ऑफ पायरामिड्स यहाँ पर पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज पायरामिड ऑफ नंबर, इकोलॉजिकल पायरामिड ऑफ नंबर. इसमें हम क्या देखते हैं? द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन एन इकोलॉजिकल पायरामिड. एंड दिस इकोलॉजिकल पायरामिड ऑफ नंबर, इट कैन बी अपराइट और इट कैन बी इन्वर्टेड ऑल्सो. ठीक है, ये अपराइट भी हो सकता है, ये इन्वर्टेड भी हो सकता है. नाउ एग्जाम्पल अगर हम देने होंगे इन्वर्टेड किस में है, जैसे कि हम देखते हैं अगर हमारे पास एक ट्री है, बड़ा सा ट्री विच इज़ एट द बेसिक ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, और उस पर लॉट ऑफ बर्ड्स जो है दे आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स. उसमें हम देखते हैं ट्री इज सिंगल बट द बर्ड्स जो उस पर प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादा हैं. दैट इज़ वेयर इकोलॉजिकल पायरामिड ऑफ नंबर गेट्स इन्वर्टेड. एंड अपराइट तो मोस्ट केसेस में होते हैं, प्लांट्स सबसे ज़्यादा, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स उससे कम होते हैं, सेकेंडरी उससे कम होते हैं, एंड सो ऑन. द सेकेंड वन इज पायरामिड ऑफ बायोमास. इसमें हम क्या देखते हैं? ई ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोलॉजिकल पायरामिड, उसमें कितना बायोमास है, कितना लिविंग मैटर है. इट कैन ऑल्सो बी अपराइट और इट कैन बी इन्वर्टेड एज वेल. ना यहाँ पर इन्वर्टेड किस केस में होता है? अगर हम देखेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम में, अगर हम देखें जो प्लैंकटॉन्स होते हैं, दे आर द प्रोड्यूसर्स देयर, और उनमें जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो कौन से होती हैं? फिशेस. यहाँ पर हम देखते हैं लेकिन फिशेस का बायोमास जो है इट इज़ मोर एज कम्पेयर टू द प्लैंकटॉन्स. तो वहाँ पर क्या होगा? पायरामिड ऑफ बायोमास जो है वो इन्वर्टेड होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है उनका बायोमास कम हो रहा है, उसके बाद जो फिशेस है उनका बायोमास बढ़ रहा है, उसके बाद जो लार्ज फिशेस है वहाँ पर और बायोमास बढ़ रहा है. तो उस केस में पायरामिड ऑफ बायोमास जो है ये इन्वर्टेड होगा. ठीक है. एंड फाइनली द पायरामिड ऑफ एनर्जी, इट इज़ ऑलवेज अपराइट. क्यों अपराइट है? जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बोला था, बिकॉज ऑफ 10% लॉ. क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर्स में कितनी एनर्जी जाती है? ओनली 10%. फिर प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स में ओनली 10% ऑफ दैट. सो ऑब्वियसली जो पायरामिड ऑफ एनर्जी होगा ये हमेशा अपराइट होगा, क्योंकि एनर्जी हर एक ट्रॉपिक लेवल पर कम होते जा रही है. ठीक है. नाउ लेट अस मूव ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. Ecosystem जो it is broadly divided into 2 components. The one is biotic component, another one is abiotic component. Biotic component क्या होता है? It includes living component like plants, animals, microorganisms, etc. ठीक है. And the abiotic component means it includes non-living components like soil, minerals, the atmosphere, climate, sunlight, and everything. Abiotic, non-living. ठीक है. Now the interaction between these components, the biotic and abiotic component, जब ये interact करते हैं it makes up the ecosystem and the nutrient cycling. ठीक है. किनके इंटरेक्शन से जो है बनता है इकोसिस्टम एंड न्यूट्रिएंट साइकिल? किससे होता है? द इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स. नाउ लेट अस मूव ऑन द इकोलॉजिकल सक्सेशन. नाउ व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन? इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द कम्युनिटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इन एन एरिया आर रिप्लेस्ड और चेंज्ड इनटू अनदर वन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. एक पर्टिकुलर एरिया में जब कम्युनिटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज रिप्लेस हो जाती है या चेंज हो जाती है बाय अनदर स्पीशीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वी से दैट इकोलॉजिकल सक्सेशन हैज ऑकर्ड एट दिस प्लेस. ठीक है. नाउ ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है इसको हमने 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है. द वन इज प्राइमरी सक्सेशन, अनदर वन इज सेकेंडरी सक्सेशन. ठीक है. नाउ ये जो प्राइमरी सक्सेशन है इट स्टार्ट्स इन एन एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज एवर एग्जिस्टेड, जहाँ पर कभी भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एग्जिस्ट करता ही नहीं था. फॉर एग्जाम्पल अ बेयर रॉक, जहाँ पर सक्सेशन पहली बार हो रही है, पहली बार लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ पर एग्जिस्ट हो रहे हैं. नाउ सिमिलरली जो सेकेंडरी सक्सेशन है उसमें क्या है? इट बिगिंस इन एन एरिया वेयर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, जहाँ पर पहले जो है बायोटिक कम्युनिटी होती थी बट दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय सम फैक्टर लाइक बर्न्ड और कट फॉरेस्ट
फॉरेस्ट में पहले भी जो है प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज थे, बट दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय बर्निंग फॉरेस्ट और कटिंग फॉरेस्ट। तो वहाँ पर जो सक्सेशन होता है वो सेकेंडरी सक्सेशन होता है, या अबंडेंट फार्मलैंड्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, नाउ व्हाट आर pioneer species? The species that invade a bare area, जो स्पीशीज सबसे पहले इन्वेड करती हैं एक बेयर एरिया को, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, pioneer species. That means they are the first species to exist in an ecological succession. And the climax community, what is climax community? It is the final community in a succession. Ecological succession में जो final community बनती है, पूरा forest जब बनता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, climax community. Now each stage in a succession is called as seral stage or sear. इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो हर एक स्टेज होता है, मतलब बेसिक पेनियर स्पीशीज से जो फाइनल क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच में जो भी स्टेज आते हैं, हर एक स्टेज को हम क्या बोलते हैं, सेरल स्टेज और सेयर। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। सबसे पहले द टर्म इकोलॉजी, इकोलॉजी टर्म जो है किसने कॉइन की थी, अर्नेस्ट हैकेल। नाउ NPP means net primary productivity. It is equal to gross primary productivity minus respiration. Number 3, detritus food chain जो होती है, detritus food chain it begins with dead organic matter. ये कहाँ से start होती है, dead organic matter से, because food chains are of two types, grazing food chain and detritus food chain. Grazing food chain is the food chain we see from plants to primary consumers like birds etc. to further secondary consumers and all. But detritus food chain जो है इसमें क्या होता है, it begins with dead and decaying organic matter. Now ecotone, what is ecotone? Ecotone is the zone of junction और ए ट्रांजिशन एरिया, जहाँ पर दो इकोसिस्टम्स जो है उनका जो जोन ऑफ जंक्शन है, लाइक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, जहाँ पर वो उनका जोन ऑफ जंक्शन है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, इकोटोन. लाइक मैंग्रोव फॉरेस्ट, it is an ecotone between the terrestrial ecosystem and the aquatic ecosystem. Similarly grasslands, estuary, ठीक है, estuary is the ecotone between the fresh water and the marine water. ठीक है, तो इकोटोन. उसके बाद आता है एज इफेक्ट. व्हाट इज एज इफेक्ट? एज इफेक्ट इज द इंक्रीज इन नंबर एंड डेंसिटी ऑफ स्पीशीज एट इकोटोन. यूजुअली क्या देखा गया है, इकोटोन पे जो है ना, इकोटोन पे नंबर ऑफ स्पीशीज एंड डेंसिटी ऑफ स्पीशीज ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू द टू रिलेटेड इकोसिस्टम्स. लाइक अगर हम मैंग्रोव की बात करेंगे जहाँ पर इकोटोन है बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, हम देखते हैं उन टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम से ज़्यादा डेंसिटी एंड नंबर ऑफ स्पीशीज कहाँ पर मिलेंगे, इसी इकोटोन में, मैंग्रोव में. इसी को हम बोलते हैं, इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट. ठीक है, उसके बाद आता है नाइकी. व्हाट इज नाइकी? इट इज़ अ यूनिक फंक्शनल रोल एंड पोजीशन ऑफ ए स्पीशीज इन इट्स हैबिटेट. एक स्पीशीज का अपने हैबिटेट में जहाँ पर वो रहता है, उस वहाँ पर उसका क्या फंक्शनल रोल है और उसकी पोजीशन क्या है उस हैबिटेट में, दैट इज व्हाट वी कॉल इट्स नाइकी. तो यहाँ पर ये याद रखना, ईच स्पीशीज हैज अ यूनिक नाइकी. इट इज़ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. कभी पूछा जाता है कि हर एक स्पीशीज का क्या है, यूनिक नाइकी होता है. ठीक है, Now at last we will see the types of interactions in a food web. फूड वेब में जो टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस होती हैं वो कैसी होती हैं. सबसे पहला जो है उसको हम बोलते हैं एमेंसिलिज्म. क्या बोलते हैं? एमेंसिलिज्म. एमेंसिलिज्म में क्या होता है, जो दो स्पीशीज होते हैं इंटरेक्टिंग स्पीशीज, स्पीशीज वन इज हार्म्ड and the other species neither harmed or nor benefited. जो minus है, minus means harmed and zero means neither harmed nor benefited. So emensilism में क्या होता है, species 1 is harmed, the species 2 is neither harmed nor benefited. Number 2 is predation. Predation में क्या होता है, species 1 is benefited and what we call him, the species who is benefited we call it as predator and the other species gets harmed, उसका हम बोलते हैं prey. The predator gets benefited and the prey जो है it's harmed. तो नंबर 3 आता है पैरासिटिज्म. उसमें भी जो है एक स्पीशी को इट इज जो है बेनिफिट मिलता है, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट, और जो दूसरा स्पीशी है उसको हार्म पहुंचता है, दैट्स हार्म्ड, और उसको हम बोलते हैं होस्ट. ठीक है, नंबर 4 इज कंपटीशन. कंपटीशन में क्या होता है, दोनों ही स्पीशीज 1 एंड स्पीशीज 2 दोनों ही जो है ये दे गेट हार्म्ड. ठीक है, उसके बाद आता है कमेंसिलिज्म. कमेंसिलिज्म में क्या होता है, एक स्पीशी को बेनिफिट मिलता है, द अदर स्पीशी जो है उसको इट्स नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड. ठीक है, एंड लास्ट पे जो है म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज जो है दे गेट बेनिफिटेड, और जो एक्सट्रीम म्यूचुअलिज्म है उसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. ठीक है,
आई होप ये टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया तो हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप जो बाकी वीडियोस हैं उनको जो है उनको भी आप देख सकते हैं और आपको फ़ायदा मिल सकता है। थैंक यू।